Hello dear students, myself Gaurav Kumar. I hope you all are doing well, healthy and fit. So let's continue our discussion over the king, farmers and towns for history class 12th. This is the third video. This is in the continuation of the previous videos. In today's video we will move further. तो चलिए शुरू करते हैं. At the end of the lesson, students will be able to explain the emergence of new towns and development of trade in the continent. Discuss about the beginning of coinage in the continent. Coinage in the sense, the beginning of the coin system, issuance of the coins by the king. Mention the limitations of inscriptions. Let's start with towns and trade. We should understand the concept that why towns and trades were start emerging and developing during this period of time. The new urban centers emerged from 6th century BCE, were the capital of Mahajanpadas, and some of them were located on the important trade routes. Like for example, we have Pataliputra, Ujjaini, Puhar. Puhar was a coastal town. At the same time, there were some another cities developed as the center of commercial, political and cultural activities. For example, like cultural activities, we have example of Mathura. During this time, we have different artifacts discovered from these towns and cities like pottery bowls and the dishes. They are known as the NBPW, Northern Black Polish Ware. They are actually categorized by the historian as a item or artifact of luxury. जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि कल्चर को समझने के लिए सोशो डिफरेंस को, सोशो इकोनॉमिक डिफरेंस को समझने के लिए हिस्टोरियन जो है लग्जरी के आइटम को ढूंढते हैं. तो इसी आधार पर कहा जाता है कि इट मे बी पॉसिबल दैट NBPW डिशेज एंड द बाउल्स दे वर यूज्ड बाय द रिच पीपल. इसके अलावा हमारे पास इसी टाइम के जो सिटीज एरिया से हमारे ऑर्नामेंट, टूल्स, वेपन्स, फिगरिन्स भी अवेलेबल हैं. इसके जो मटेरियल जो इसके अंदर यूज किया जाता था वो वेरी करता था फ्रॉम गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, आइवरी टू टेराकोटा एंड एटसेट्रा. अदर मटेरियल वर आल्सो यूज्ड. These are the some you can say important towns. This is Mathura, Takshila, we have Patliputra, and this is the Puhar, the coastal town. Now let's talk about trade. As we discussed, this some of these cities were located on the trade routes. तो इसका मतलब है कि ट्रेड के डेवलप होने की वजह से ही ये जो सिटीज थे वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर के रूप में उभरना शुरू हो गए थे. अब ट्रेड एंड कॉइन दे बोथ गो हैंड इन हैंड, बिकॉज अगर ट्रेड होता है तो एक्सचेंज करने के लिए या पेमेंट करने के लिए हमारे पास कोई मोड होना चाहिए. तो इस टाइम पर जो वो मोड था दैट वाज कॉइन्स. फ्रॉम 6th century BC, लैंड एंड रिवर रूट्स एक्सटेंडेड. दिस वाज द रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड. अब जो था कि जो हमारा लैंड रूट और रिवर रूट था जो एक्सचेंज करने का, ट्रेड करने का, वो एक्सटेंड हो गया था. पहले से ज्यादा उसका दायरा बढ़ गया था. फॉर एग्जाम्पल, लैंड रूट्स जो था वो सेंट्रल एशिया या उससे भी आगे तक जो था वो डेवलप हो चुका था. तो उसके माध्यम से, उसके थ्रू हम लोग ट्रेड जो था उसका उन एरिया के साथ ट्रेड कर सकते. तो इससे ट्रेड जो था वो फ्लरिश होना शुरू हुआ. At the same time, river routes or you can say sea routes were also extended. For example, from Arabian Sea to North and East Africa to West Asia, Bay of Bengal से South East Asia and China तक. अब हम बात करेंगे coins की. Yes, coins were the important, you can say, mode of transaction. Exchanges were facilitated by the coins. Punchmark coins made up of silver and copper, they were the first coins found in India. They were basically issued by kings. Sometimes merchants, bankers or town people, they also issued the coins. Another development in the field of coins was brought by Indo-Greeks. Indo-Greeks were the first ruler who actually issued coins with the name and image of the ruler. Indo-Greeks ruled on the northwest part of the subcontinent around 2nd century BCE. तो वो ऐसे पहले रूलर थे जिन्होंने राजा के नाम और उसके इमेज के साथ जो है वो कॉइन्स को इशू करना शुरू किया, जिसका एग्जांपल अभी एक इमेजेस हम अगले स्लाइड में देखेंगे. Now come to the Kushanas. The most important development was brought by the Kushanas because they were the first who issued gold coins.
these coins issued by the Kushanas, these gold coins, they were identical to the Roman Empire and the Parthian of the Iran. रोमन एम्पायर के एकदम समकक्ष हम कह सकते हैं, उनसे मिलते जुलते थे। इसी के साथ साथ हमारे पास रोमन एम्पायर के बहुत सारे जो कॉइन है वो साउथ इंडिया से मिलते हैं, जिसका एग्जांपल, जिसका रीजन हम यही मानते हैं कि देयर वाज अ कनेक्शन बिटवीन रोमन एम्पायर एंड द साउथ इंडिया एंड दिस कनेक्शन वाज वाया ट्रेड ओनली। ट्राइबल रिपब्लिक, दे आल्सो इशूड कॉइन्स। वी हैव एग्जांपल ऑफ योद्धेज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जो इन लोगों ने जो कॉइन इशू किए थे वो कॉपर कॉइन्स थे। इसके अलावा गोल्ड कॉइन्स इशूड बाय दी गुप्ता एम्पायर, वो अपनी प्योरिटी के लिए कॉइनेज की जो हिस्ट्री है हमारी इंडियन हिस्ट्री, उसमें सबसे फेमस माने जाते हैं। इधर एट दिस यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ दिस पंचमार्क कॉइन्स एंड दे आर द कॉइन्स इशूड बाय योद्धेज ऑफ दिस पंजाब एंड हरियाणा एरियाज। फ्रॉम 6th century onwards दी फाइंड ऑफ दी गोल्ड कॉइन स्टेप और तो उनकी जो हमारी फाइंडिंग है वो जो है वो मिलना कम हो गई है कंपैरेटिवली पहले से। इज अ डिफरेंट ओपिनियन हिस्टोरियंस हैव। कुछ लोगों का कहना था कि जो गोल्ड कॉइन का मिलना कम हुआ, इट वाज बिकॉज ऑफ द कोलैप्स ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर दैट लीड टू द डिक्लाइन इन द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। अब इस ट्रेड से जितना भी एक्सचेंज या गोल्ड कॉइन्स का हमारा जो एक्सचेंज रोमन एम्पायर, जैसे हमने बात की थी, रोमन एम्पायर कॉइन्स वर आल्सो फाउंड इन द साउथ इंडिया बिकॉज इट इज इंडिकेशन ऑफ द ट्रेड बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो वो खत्म हुआ तो धीरे धीरे हमारे पास वो कॉइन्स का जो एक्सचेंज था वो भी कम हो गया, और इसकी वजह से ट्रेड में जब कमी आई तो उससे प्रोस्पेरिटी भी कम होनी शुरू हो गई। उसकी वजह से कॉइन्स की जो थी वो हमारे पास अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। Other argues that new towns and networks of trade started emerging around this time. They also point out that though finds of coins of that time are fewer, but coins were still mentioned in inscription and text. तो इट मे बी पॉसिबल कि इस टाइम कॉइन्स तो थे, क्योंकि उनका जो डिस्कशन है, उनके बारे में जो मेंशन है, दैट वर देयर इन द इंस्क्रिप्शन। बट ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि लोगों ने अब कॉइन्स को सर्कुलेशन में देने की बजाय उसको अपने घर पर होल्ड करना शुरू कर दिया, अपने पास रखना शुरू कर दिया। सो दैट इज व्हाई दे वर नॉट अवेलेबल इन द एक्सकैवेशंस, वी आर नॉट एबल टू फाइंड देम। These are the examples of Gupta coins. These images are given in the NCERT. So you can refer the NCERT also. Here we were talking about the Indo-Greek kings who started the first coin with the image and the name of the king. That is the image of an Indo-Greek king, one of the famous king, that is Menander. You can see this one. अब हम आगे बढ़ते हैं लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस। हमने अभी तक सबसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था दैट इंस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री. It is archaeological, in the category of archaeological source, but at the same time we have some limitations also. First, it may be possible that letters are very faintly engraved. बहुत ही धुंधले तरीके से जो है वो लेटर जो है वो एनग्रेव किए गए हैं, उल्लेखित किए गए हैं, अभिलेखित किए गए हैं. तो जब वो धुंधले होंगे तो आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब वो हमको मिलते हैं और हम उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल दैट रिकंस्ट्रक्शन आर अनसर्टेन, नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है. Then we have inscription may be damaged और letter may be missing. अगर कोई inscription टूट गई है, डैमेज हो गई है और letter उसमें से गायब हो गए हैं तो हम उसका सही अनुमान whatever is written there we cannot understand completely. Then exact meaning cannot be found always. Yes, that is possible. If like we are not able to decipher the script properly, तो it may be possible the exact meaning हमें उसका पता नहीं चल सकता. तो दिस इज ऑल्सो अनदर लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शंस. दिस वन इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट लिमिटेशन कि सारी की सारी वो इंफॉर्मेशन जो पॉलिटिकली और सोशली या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट हो, ये जरूरी नहीं है कि वो सारी इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड की गई हो. तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो इंपॉर्टेंट हुई हो बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया इंस्क्रिप्शन के अंदर, तो हम एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को हासिल नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में पता नहीं चलेगा. तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस. दिस इज द इंपॉर्टेंट टाइमलाइन फॉर द मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड. दिस इज गिवन एट द लास्ट पेज ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द चैप्टर, so you can refer from there. So now we are done with this chapter. There are some questions for the assignment. Kindly complete.
and for the reference use this video. Thank you.